Jai Hind everyone, myself Geeta Patel with a new chapter for class 8, Varghese Kurian. I too had a dream. Let us see what this chapter is going to share us. Varghese Kurian, I too had a dream, values and dispositions. Let us read V. Kurian, Anand 3880001 India, to my grandson, Anand 2005. My dear Siddharth, I think this is a letter to his grandson. My dear Siddharth, when did I write you last? I have trouble even remembering. In today's fast-paced world, we have become so addicted to instant communications that we refer to use a telephone. But speaking on the telephone only gives us an immediate but fleeting joy. Writing is different. Writing, even if it is a letter, not only conveys our present concerns and views of the events taking place around us, but it becomes a possession that can be treasured and reread over the years with great abiding pleasure. Now here, grandfather is writing a letter to his grandson कि मैंने आपको कब लास्ट लेटर लिखा था, ऐसा वो लेटर में लिख रहे हैं कि मुझे तो याद भी नहीं है। और आजकल के जल्दी के ज़माने में टेलीफोन ही हम यूज़ करते हो। और टेलीफोन क्या होता है कि हम जो भी बात करते हैं या कोई भी फीलिंग शेयर करते हैं वो सभी शॉर्ट टाइम की होती है कि जो हमने जब भी बात की तभी वो फीलिंग आई, बाद में वो फीलिंग चली गई है। और वो बोल रहे हैं कि राइटिंग एक अलग ही माध्यम है बात करने का, और जब कभी भी उसको चाहे हम पढ़ सकते हैं, वो स्टोर करके हम रखते हैं लेटर्स। तो ये उनको एक चिंता हो रही है कि आजकल के ज़माने में लिखना सभी लोगों ने छोड़ दिया है। यू मे नॉट विश टू रीड इट ऑल राइट अवे, बट perhaps a couple of decades or more from now, you will pick up these jottings of mine again and they will give you a deeper understanding of what I have done. वो बोल रहे हैं कि अभी तो आपको लगेगा कि क्या ये लेटर वेटर लिखना है ऐसा, पर जब ये आप लेटर कई सालों के बाद पढ़ोगे तभी आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी और आपको बहुत ही डीपली उसका जो हम बात करते हैं उसका मीनिंग है, उसके फीलिंग्स है, वो आपको समझ में आएंगे। I pursued a life of service to our nation's farmers. You will then discover them a valuable reminder of the days just before the world entered the 21st century. यहाँ पे जो मैंने अपनी लाइफ है वो नेशन के फार्मर्स को डेडिकेट कर दी है और ये बात बहुत ही वैल्यूएबल है और आपको ये मेरे दिन याद आएंगे जब आप 21st सेंचुरी में जाओगे तब। एंड यू मे वॉन्ट टू शेयर माई मेमोरीज विद दोज ऑफ योर जनरेशन, और ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरी बातें उनको शेयर करोगे कि मेरे दादाजी ऐसे करते थे, मेरे दादाजी ऐसे करते थे। और इवन यंगर टू प्रोवाइड अ ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड योर grandparents lived it and knew, या अपनी जब आप यंग हो उसकी बातें भी करेंगे पूरी दुनिया को जब कभी भी आपको मौका मिले तब। I started my working life soon after our country became independent. मैंने अपनी लाइफ कब शुरू की? तो जैसे ही हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला उन्होंने अपनी लाइफ शुरू की। The noblest task in those days was to contribute in whatever way we could towards building as India of our dreams. A nation where our people would not only hold their heads high in freedom but would be free from hunger and poverty. यहाँ पे बहुत ही
बड़ा टास्क था उनके पास करने के लिए। जो उनके सपने थे इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए। और तभी का ज़माना जो था वो बहुत ही लोगों के पास हंगर एंड पॉवर्टी, जो सारी तकलीफ़ें थी उनमें से निकालने की थी। अ नेशन वेयर आवर पीपल कुड लिव विथ इक्वल रिस्पेक्ट एंड लव फॉर वन अनदर। एक देश जहाँ पे हर कोई इक्वली रह सके, प्यार और मान सम्मान के साथ। A nation that would eventually be counted among the foremost nations of the world. It was then that I realized in humility that choosing to lead one kind of lines of life means putting aside the desire to pursue other options. यहाँ पे मुझे ये समझ में आया था कि कोई भी चीज़ को अगर लीड करके आगे बढ़ाया जाए तो वो जल्दी से और आसानी से बढ़ सकता है और हर कोई वो परस्यू कर सकता है। This transformation took place within 50 years ago when I agreed to work for small cooperative of dairy farmers who were trying to gain control over their lives. यहाँ पे मैंने एक लोगों की तकलीफ जो थी वो मैंने देखी, और वो तकलीफ किन लोगों को पड़ रही थी, जो डेयरी फार्मर्स है उन लोगों को तकलीफ पड़ रही थी। तो उनके लाइफ्स को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपनी स्ट्रेटजी आजमाई और उसमें आगे बढ़ी। टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, सर्विस टू आवर नेशन फार्मर्स वॉज नॉट द कैरियर आई हैड envisioned for myself, but somehow a series of events swept me along and put me in a certain time with a choice that would transform my life. I could have pursued a career in metallurgy and become the chief executive of a large company. यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ये उन्होंने जो अपनी लाइफ डेडिकेट की थी, उनको ऐसा नहीं था कि पढ़ाई नहीं करनी थी और आगे नहीं बढ़ना था, पर उनको बढ़ना था सभी को साथ में लेके। और उन्होंने ये चॉइस रखी कि वो डेयरी फार्मर्स को आगे बढ़ाएंगे। और opted for a commission in the Indian Army and may be retired as a general. उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि वो एक बड़ी कंपनी खोल सकते हैं और कोई कमीशन इंडिया आर्मी में जनरल बन सकते हैं और फिर रिटायर होकर आराम से अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं। और आई कुड हैव लेफ्ट फॉर द यूएस एंड गॉन ऑन टू द बिकम हाईली सक्सेसफुल एनआरआई। या तो मैं यूएस भी जा सकता था और वहाँ पे जाके एक बहुत बड़ा एनआरआई बन सकता था। Yet I chose none of this because somewhere deep down I knew I could make a more meaningful contribution by working here in Anand, गुजरात। वो बोल रहे हैं कि मैं इनमें से कोई भी काम कर सकता था, पर मैंने ये ऐसा सोचा कि मैं आनंद और गुजरात में रह के गुजरात की प्रगति करूँगा। Your grandmother too made an important choice. आपकी दादी जी ने भी यही चॉइस को अपनाया। She knew in those days life in Anand could not offer even the simple efforts that we take for granted today. उस टाइम में नॉर्मली जीना भी इजी नहीं था, और आपकी दादी को भी पता था कि उनको भी बहुत सारी तकलीफ़ें आएंगी, कोई सिंपल कंफर्ट्स भी नहीं रहेंगे, फिर भी उन्होंने यही चूज़ किया। However, she ardently supported my choice to live and work in Anand. The choice of your grandmother to stand by me has given me an everlasting strength, always ensuring that I shouldered my responsibilities with poise. यहाँ पे दादी जब डिसीजन ले रही है कि मैं भी आपके साथ यहाँ रह के आपको सपोर्ट करूँगी, वही एक बहुत बड़ी थैंक यू या डिसीजन था लाइफ का, जो उनको बहुत ही ताकत दिया दादाजी को, और वो उनके साथ खंभे से खंभे मिला के रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पाए। और पॉइज मतलब इन अ काम एंड कॉन्फिडेंट मैनर, एकदम से कॉन्फिडेंटली कोई भी वर्क को स्टार्ट करना।
Whenever I received any recognition for my contributions towards the progress of our country, I always emphasized that it is a recognition of the achievements of many people with whom I had privilege to be associated with. I would like to stress even more strongly that my contributions have been possible only because I have consistently adhered to certain values. मैं यहाँ पे अपनी बात कर रहा हूँ कि जब कभी भी मैंने कोई भी डिसीजन लिया है या कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है तो मैं एकदम डेडिकेटली और सारी चीज़ें अचीव करके लोगों को आगे बढ़ाने में रहता हूँ। और मुझे ये प्रिविलेज है कि कोई भी स्ट्रेस किए बिना स्ट्रांगली अपने डिसीजंस पे फर्म रहता हूँ और उनको आगे की दिशा पे लेके जाता हूँ। एडहर्ड मतलब सपोर्ट, कंटिन्यूइंग सपोर्ट करना और कुछ वैल्यूज़ और सपोर्ट करना कंटिन्यू रखा विदाउट एनी फेल। वैल्यूज़ दैट आई हैव inherited from my parents and other family elders, values that I saw in my mentor and supporter here in Anand, त्रिभुवन दास पटेल। वैल्यूज़ मतलब वो जो बोल रहे हैं कि जो लाइफ की सारी सीख है उसको मैंने अपने पेरेंट्स और मेरे बड़े बुजुर्ग फैमिली के जो है और मेरे मेंटर और मेरे सपोर्टर यहाँ पे आनंद में जो थे वो त्रिभुवन दास पटेल थे। I have often spoken of integrity as the most important of these values, realizing that integrity and personal integrity at that is being honest to yourself. यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? खुद को honest रहना हर कोई काम में। Do anything without cheating. If you are always honest to yourself, it doesn't take much effort in always being honest with others. अगर आप honest हो खुद के लिए तो ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगता है कोई भी चीज़ करने के लिए। I have also learned what I am sure. You too will find out someday. Life is a privilege and to waste it would be wrong. यहाँ पे उनके दादाजी उनको बोल रहे हैं कि आपको भी एक दिन समझ में आएगा कि लाइफ है जो उसको वेस्ट नहीं करना है। In living this privilege called life, you must accept responsibilities for yourself. Always use your talents to the best of your ability and contribute somehow to the common good. यहाँ पे जो लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं दादाजी कि आपको भी कभी लाइफ वेस्ट नहीं करनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स रखने चाहिए लाइफ में और जो भी हमारी एबिलिटी है उसको जारी रखना चाहिए, उसको कभी ब्रेक डाउन होने नहीं देना चाहिए। That common good will present itself to you in many forms every day. If you look around you, you will find there is a lot of waiting to be done. Your friend may need some help. Your teacher could be looking for a volunteer, or the community you live in will need you to make a contribution. I hope that you too will discover, as I did, that failure is not about not succeeding. Rather, it is about not putting in your best efforts and not contributing, however modestly, to the common goods. यहाँ पे दादाजी बोल रहे हैं कि वॉलेंटरी मतलब खुद से ही हम जो कोई भी काम करते हैं वो 100% और एकदम से डिस्कवर करके और कंट्रीब्यूशन एकदम 100% होना चाहिए, तभी जाके हमको सक्सेस मिलता है। और डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए। अगर हमें फेलियर मिलता है तो भी हमें उसमें हार नहीं माननी चाहिए और 100% और ज़्यादा एफर्ट देना चाहिए और मॉडेस्टली काम करना चाहिए। इन लाइफ you too will discover, as I did, that anything can go wrong at any time and mostly does. Yet there is a little correlation between circumstances of people's lives and how happy they are. यहाँ पे दादाजी ऐसा बोल रहे हैं कि तुम जब बड़े हो जाओगे, समझदार हो जाओगे तो आप भी ये बात डिस्कवर करोगे खुद के लाइफ में। Circumstances, people's life and how happy they are.
Most of us compare ourselves with someone we think is happier, a relative, an acquaintance, or often somehow someone we barely know. यहाँ पे हम हर बार क्या करते हैं, सॉरी, हम हमारे लाइफ में क्या करते हैं, हम अपने रिलेटिव्स के साथ खुद को कंपेयर करते हैं, एक्वेटेंस के साथ होते हैं, और ऑफनली समहाउ कुछ ही ज़्यादा जानते हैं कोई भी चीज़ों के बारे में। पर अगर हम एकदम से नज़दीकी और बारीकी से स्टार्ट करें देखना और रियलाइज करना, तो हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हमने परफेक्शन लाने की ज़रूरत है। एंड दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड चेरिश व्हाट वी हैव रादर देन एंड व्हाट वी डोंट हैव। यहाँ पे आपको तब पता चलता है लाइफ में कि आपके पास चीज़ है और जो नहीं है, उन दोनों का क्या इम्पोर्टेंस रह गया है लाइफ में। Do you remember when you accompanied me at the magnificent ceremony in Delhi, where our president awarded me the Padma Vibhushan in 1999? With great pride, you slipped the medal around your neck, looked at it in awe, and asked me very innocently if you could keep it. आपको क्या याद है कि जब हम लोग दिल्ली गए थे और प्रेसिडेंट ने मुझे अवार्ड दिया था पद्म विभूषण, और तभी आपने एकदम प्राइड से, गर्व से मेडल पहना था अपने गले में और मेरे साथ एकदम ही ऑ मोमेंट में बात की थी, और इनोसेंटली इफ़ यू कुड कीप इट, आपने मुझे पूछा कि क्या मैं ये रख सकता हूँ। डू यू रिमेंबर द आंसर योर ग्रैंड मदर एंड आई गेव यू? क्या आपको याद है मैंने और आपकी दादी ने आपको क्या जवाब दिया था? वी टोल्ड यू दैट ऑफ कोर्स दिस मेडल वॉज योर्स as much as it was mine, but that you should not be satisfied in merely keeping my award. The challenge before you was to earn your own reward for the work that you did in your lifetime. यहाँ पे मैंने और आपकी दादी ने आपको बोला था कि यहाँ अभी कोई बात नहीं, पहन लो, पर आपकी लाइफ में क्या करना है, आपको ये अचीव करना है और हर लाइफ की हर एक चैलेंज को अपना के आगे बढ़ना है। एंड इन द एंड, इफ वी आर ब्रेव इनफ टू लव, स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिजॉइस इन अनदर हैप्पीनेस, एंड वाइज इनफ टू नो दैट देयर इज इनफ टू गो अराउंड फॉर ऑल, देन वी वुड हैव लिव्ड आवर लाइफ्स टू द फुलेस्ट। अगर हमें अपनी लाइफ में सारी बातें पता होती कि हमें किस तरह से, कैसे, किसके लिए हैप्पीनेस, वाइजनेस, चालाकी कैसे यूज़ करनी है, किसी के साथ किसी को हैप्पी रखना है, हमारे आजू बाजू वाले सारे लोगों के बारे में अगर हमें पता होता तो लाइफ एकदम से भरी होती खुशियों से। आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस मुशिंग्स टू यू सिद्धार्थ एंड टू द मिलियंस ऑफ अदर चिल्ड्रन of your generation in our country, in the hope that upon reading them you will be inspired enough to go bravely out into the world and work tirelessly in your chosen field for the larger good of the country, for the larger good of humanity. यहाँ पे उसके दादाजी उनको बोल रहे हैं कि सिद्धार्थ, ये सारी बातें अगर आप अपने दोस्त वगैरह को शेयर करोगे, मिलियंस ऑफ पीपल, तो ये जनरेशन एकदम से अलग ही होगी कुछ। मस्टिंग्स मतलब थॉट्स ऑन समथिंग वन हैज़ बीन थिंकिंग अबाउट केयरफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम। और आप ये फील्ड भी एकदम टायर्डलेसली चूज कर सकते हो, और लार्जर गुड्स फॉर द कंट्री, और फिर ज़्यादा इंसानियत में भी उपयोग होता। रिमेंबर, रिवॉर्ड्स दैट कम टू यू देन आर ओनली द ट्रू रिवॉर्ड्स फॉर अ लाइफ वेल स्पेंट। जो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं लाइफ में वो इम्पोर्टेंट तो है ही, पर सच्चा रिवॉर्ड क्या है कि लाइफ हम किस तरह से स्पेंड करते हैं, हैप्पीनेस, इनोसेंटली, हेल्पिंग अदर्स, ठीक है।
विथ माई फॉन्डेस्ट लव। दादू वी कोरियन, हु सेज वन मैन कैनॉट मेक अ चेंज। जो ये इनके दादा की जो सोच थी वो एकदम सबसे अलग थी, और तब जाके ये अमूल डेयरी खड़ी हुई है। उन्होंने सारे लोगों की हेल्प आउट की है। होप यू ऑल एंजॉयड दिस स्टोरी। थैंक यू।